As the country is witnessing an election Mahasangram, today Times Now's team has reached to the battleground for the state of Haryana. We are standing in the Rohtak constituency, which is being considered as one of the key constituencies as its results are also expected to make an impact in the upcoming assembly elections. Rohtak, which is being considered as the heartland of Jats, considering that there is more than 50% of the population of Jats in this constituency. However, in the last Lok Sabha elections of year 2019, BJP has countered it by consolidating the non-Jat voters by fielding a Brahmin face who was Arvind Sharma, who had defeated Dipinder Singh Hooda in 2019 Lok Sabha elections. How Dipinder Singh Hooda is going to counter this narrative of the BJP, how he is going to retain this constituency of Rohtak, which he had represented 3 times, that was in year 2005, 2009 and 2014. We will be seeing in the upcoming days, and we are going to monitor it closely from this constituency. A state that has contributed significantly to the BJP's dominance in the Hindi-speaking belt in particular is Haryana. In 2019, the BJP swept all 10 seats here. Since then, the ride hasn't been the smoothest for the BJP. It could not secure a majority on its own in Haryana in the assembly election that followed in October 2019. But it did form a government with the Jan Nayak Janata Party led by Dushyant Chautala. The two parties had their disagreements and in the build-up to the Lok Sabha polls would snap their ties. There's also been a change in leadership in Haryana. Manohar Lal Khattar, who first took over as Chief Minister in 2014, resigned in 2024 to focus on his electoral fight as a Lok Sabha candidate from Karnal. Naib Singh Saini, belonging to the OBC community, took over as Chief Minister. The Congress has been a vocal opposition, but will that translate into a serious challenge for the BJP when it comes to the polls? To get an idea of the Congress's campaign against the BJP, we met Dipinder Singh Hooda, former Member of Parliament of the Congress, who is contesting from the family stronghold of Rohtak. For decades, the politics of Rohtak as well as Haryana has been shaped by the influence of the 3 generations of Hooda family. Even in Rohtak, if we talk about in particular, then the Hooda family has represented this particular constituency 9 times. Dipinder Singh Hooda, who is currently the Congress party's candidate from the Rohtak constituency, had been an MP from this particular constituency 3 times, which was in the year of 2005, 2009 and 2014. However, the defeat of Dipinder Hooda by BJP's Arvind Sharma in the year 2019 made a significant shift in the dynamics of politics of Rohtak, and that's the reason why in this election, the 2024 general elections, Dipinder Singh Hooda has been extensively campaigning in this Rohtak constituency with an aim that the mood of the people can give benefit to him, as the voters can change their minds and support the Congress party in the 2024 general elections. But whether he will be successful in doing this, because the slogan which has been given by the Congress party for Dipinder Singh Hooda is that his work is going to prove that he is the right candidate to represent the Rohtak constituency. The Rohtak Lok Sabha constituency includes 9 assembly segments: Meham, Gadi Sampla Kiloi, Rohtak, Kalanor, Bahadurgarh, Badli, Jhajjar, Peri and Kosli. In 2019, 7 of these were won by the Congress party in an election that the Congress eventually lost. One of these assembly segments was won by the BJP and another one by an independent. The constituency has been represented on 9 occasions by members of the Hooda family, and Dipinder is the third in that family, preceded by his father, Bhupinder Singh Hooda, a former Chief Minister. Today we have also been joined by some of the people who are the residents of Jadra village, and let us go across to them and discuss that what are their viewpoints, what's the mood of the people of Haryana about the elections, also particularly about the Rohtak constituency. Sir, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे
क्या मूड लग रहा है आपको जनता का? यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जो है चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद शर्मा के खिलाफ। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे, क्या आपको लगता है कि इस बार भी सेम चीज रिपीट होने वाली है या बदलाव का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? पिछली बार दीपेंद्र जी जितने मतों से हारे थे उससे दुगने मतों से इस बार जीत रहे हैं, और ना केवल हरियाणा में रिकॉर्ड बनने जा रहा है बल्कि उत्तर भारत की एकमात्र सबसे जीत वाली सीट होगी जिसमें लाखों वोटों से जीत हासिल करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी। इसका कारण है कि पिछले जो सांसद थे, निवर्तमान सांसद अरविंद शर्मा, उन्होंने सांसद बनने के बाद कभी भी लोगों की सुध नहीं ली। काम करना तो छोड़िए, लोगों के पास आकर उनका हालचाल भी नहीं पूछा। वो केवल किसी के नाम से जीत गए थे और उस नाम की आड़ में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इधर एक दिन के लिए भी किसी भी गांव में वो नहीं आए, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में भारी रोष है। और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं कि उनका कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो अपने घर पे आराम करते हैं, वो लोगों के बीच रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग लाखों की संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको जो भी सांसद चुनकर आने वाले उनसे? मैं कंवर सिंह जिला अध्यक्ष रिटायर्ड कर्मचारी संघ रेवाड़ी के पद पर कार्य कर रहा हूं, और मेरा मूल गांव भी गांव जाडरा है जो लोकसभा क्षेत्र रोहतक में आता है। हमारे गांव में पिछले कार्यकाल में दीपेंद्र जी जो सांसद हैं राज्यसभा के, इन्होंने ही हमारे स्कूल को अपग्रेड किया, +2 बनाया, और हमारे गांव में ही बूस्टिंग स्टेशन बना इन्हीं के कार्यकाल में। और बीजेपी के कार्यकाल में कोई भी रेवाड़ी में कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, कोई कॉलेज नहीं बना। इसलिए जनता में रोष है, हर वर्ग परेशान है। सभी विभागों का ये निजीकरण करने पर बीजेपी तुली हुई है। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे वह मजदूर है, चाहे वो एम्प्लॉई हैं, चाहे वो पेंशनर हैं, सभी वर्ग परेशान है इससे। लेकिन क्या वजह थी कि पिछले चुनावों में जो है वो अरविंद शर्मा को ज़्यादा वोट मिले थे, वो जीत कर आए थे? आप लगभग यहाँ पर जितने लोगों से बात की है, सभी लोगों का ये कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा जो है उन्होंने ही यहाँ काम किया है। तो आखिर अरविंद शर्मा के जीतने का क्या कारण आपको लगा? कारण क्या था? एक साइड की आवाज़ थी मोदी की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इस बार आपको लग रहा है कि वो जो हवा है वो बदल गई है? बदल गई है। हकीकत है, जब काम नहीं करोगे तो काम कहाँ से होगा। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि कितने सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? लगभग 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और यहाँ रोहतक से तो अरविंद शर्मा मुकाबले में ही नहीं है। These are the people who are of the viewpoint that Dipender Hooda will win in this elections with a huge margin, as they have a complaint with Arvind Sharma, who had won in the last elections, by saying that he doesn't come to their own villages, he doesn't listen to the people's problems, and that's the reason why there is an anti-incumbency against Arvind Sharma, and that's why they all have come together and they are saying that for sure Dipender Hooda is going to win in these elections. In 2019, Dipender Hooda lost narrowly to Dr. Arvind Sharma of the BJP by a margin of just 7,503 votes. He takes on Arvind Sharma once again. How will it pan out this time? We have been joined by the senior Congress leader and the Congress party's candidate from Rohtak constituency, Dipender Hooda himself. Sir, आज हम लोगों ने देखा किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो लोगों की तरफ से खुद से ये रिस्पांस मिल रहा है कि आप अपनी तबीयत का पहले ध्यान रखिए। क्या लगता है कि ये जो प्यार है, ये जो आशीर्वाद है, ये वोट्स में भी क्या टर्न हो पाएगा सर? निश्चित तौर से रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और केवल रोहतक लोकसभा सीट ही नहीं, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतेगा हरियाणा में, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, हमने जनता से भी बात की, उन्होंने ये बोला कि पिछली बार 2019 में आप चुनाव हार ज़रूर गए थे, लेकिन अरविंद शर्मा के जीतने के बाद उन्होंने इतना जो है वो अपनी लोकसभा में इतना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं किया जितना आपने किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी हम देख पा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर आपको देखने के लिए, मिलने के लिए। देखिए, जहाँ तक जो अभी मौजूदा सांसद और अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरविंद शर्मा जी, वो उनको रोहतक लोकसभा सीट से, इस क्षेत्र से कोई भावनात्मक उनका लगाव नहीं है। वो तो करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको यहाँ से दे दी। इस बार भी वो करनाल वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोबारा दे दी। वो 5 साल में धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए।
वो काम तो बात की बात है, उन्होंने एमपी कोटा ही अपना खर्च नहीं किया। लोकसभा उम्मीदवार अपना लोकसभा सांसद अपना सांसद कोटा खर्च ना करे, धन्यवादी दौरा ना करे, तो यानी कि क्षेत्र के प्रति उसकी क्या भावना होंगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ जब लोगों ने मेरा भी कार्यकाल यहाँ से देखा है, मेरे काम को भी देखा है, मेरे आचरण को भी देखा है, और काम और आचरण की कसौटी पर लोग जब तोल के देखते हैं तो उस पर एक ही निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, लोग साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। सर, ये गढ़ माना जाता है आपके परिवार का, 9 बार जो है आपके परिवार के सदस्य की तरफ से ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन पिछली बार जो चुनाव आप हारे, क्या वजह आपको उसके पीछे लगती है और इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर से पिछली बार कई कारण थे, एक पुलवामा का भी बड़ा फैक्टर था। आपने देखा होगा कि पूरे देश उत्तर भारत में फिर भी 48% वोट, विपक्ष के कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा वोट पूरे उत्तर भारत में 48% वोट यहाँ पे कांग्रेस लोगों ने दी थी, और बहुत ही जो है कम मार्जिन से हम पिछली बार यहाँ से लगभग 7,000 का मार्जिन था, जो बहुत ही कम मार्जिन होता है लोकसभा चुनाव में। उसमें कई फैक्टर थे, उसमें एक कारण पुलवामा का भी था। और मगर इस बार 10 साल बीजेपी की सरकार को बरत के लोगों ने देखा है, 10 साल में कोई भी एक विकास कार्य भाजपा वाले गिनवा नहीं सकते पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। तो अब एक बड़ा फैक्टर दूसरा हरियाणा में बदलाव का भी है। आज लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है, हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी की सरकार के खिलाफ इतनी नाराज़गी बन गई क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। आज देश में महंगाई, हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, आज जिस प्रकार से विकास की पटरी से हरियाणा उतरा, किसी का काम नहीं हुआ, किसी का मान सम्मान भी नहीं हुआ, केवल अपमान, लोगों का हर वर्ग का अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। तो ऐसे में लोगों में इतनी नाराज़गी होगी कि बीजेपी को स्वयं अपने मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच में बदलना पड़ रहा है, और लेकिन बदलने के बावजूद लोगों की नाराज़गी नहीं बदल पा रही। बीजेपी के विधायक फिर भी एक एक करके कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस के पाले में आके खड़े हो रहे हरियाणा में चुनाव के बीचों बीच। तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के प्रति कितनी भारी नाराज़गी हरियाणा कोने कोने में होगी। तो आज ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये जो वोट है ये हरियाणा में बदलाव लाने की भी वोट रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार में जो उठापटक है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बदले गए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो इस बार लोकसभा के लिए भी वोट करेंगे उस पर। देखिए, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं, वो बदला क्यों गया है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो बदल जाना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, बदले इसलिए गए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की प्रदेश के कोने कोने में इतनी नाराज़गी बन गई बीजेपी के प्रति कि भाजपा वालों के पास रिपोर्ट गई कि बड़े एक तरफा चुनाव हार रहे हैं, और जब ऐसी रिपोर्ट जाती है तो उन्होंने अपना फैसला लिया, उन्होंने चुनाव के बीच में बदलने का काम किया। लेकिन जो 10 साल हरियाणा के ख़राब कर दिए, विकास की पटरी से हरियाणा को उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, उससे वो जो नाराज़गी बनी है वो किसी के बदलने से कम नहीं हो सकती। अब ये भाजपा वाले क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलेंगे, अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलेगी हरियाणा। We continued our conversation with Dipinder Singh Hooda, who also played down any talk of a rift within the Congress party. रोहतक को हार्टलैंड माना जाता है जाटों का, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। कि आपको लगता है उसका इम्पैक्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है, जितना आपने अभी तक कैंपेन किया है लोगों के बीच में, क्या वो एक महत्वपूर्ण विषय है जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं या ओबीसी के लिए जो आप राइट्स की डिमांड कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हर धर्म हर जाति की विचारधारा की पार्टी है, और रोहतक भी 36 बिरादरी का हमारा लोकसभा क्षेत्र है, और देश की हर लोकसभा क्षेत्र 36 बिरादरी की लोकसभा क्षेत्र होती है। ये प्रेस वालों की इस तरह की भाषा आप लोग की रहती है। ये देश भी 36 बिरादरी का, हमारा प्रदेश भी 36 बिरादरी का, और कांग्रेस पार्टी ने जो ओबीसी समाज के लिए जो सारी बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी ने, वो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। चाहे कास्ट सेंसस की बात हो, चाहे हमारे जो है मैं समझता हूँ कि क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात हो 6 लाख से 10 लाख, वो सारे हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और उस बात को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं।
लेकिन सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम रिजर्वेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉमिस किया गया है आप लोगों के मैनिफेस्टो में। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या? जी, लेकिन उसको कैसे काउंटर करने वाली कांग्रेस पार्टी? नहीं, आप एक बात बताइए, मैनिफेस्टो अगर मैनिफेस्टो में कोई चीज़ लिखी नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी जबरदस्ती कहेंगे ये लिखा हुआ है, तो फिर उस बात का तो हम क्या बताएं। मैनिफेस्टो में अगर कहीं चीज़ लिखी हुई है किसी पार्टी की तो हम समझ सकते हैं। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये इस शब्द का प्रयोग ही नहीं है तो प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं? मैं समझता हूँ पहली और दूसरी चरण की जो मतदान की जो रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश से, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ पर घोर निराशा लगी। इसके बाद भाजपा के नेताओं के, शीर्ष नेताओं की भाषा में असत्यता और कटुता दोनों दिखाई दे रही है। ऐसा तो मैं समझता हूँ किसी को नहीं कहना चाहिए। अब हम कह दें कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि भाई ये होगा होगा, अब मैनिफेस्टो में जो है वो तो है। मैनिफेस्टो तो ओपन डॉक्यूमेंट, आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप मैनिफेस्टो को दिखा दीजिए टीवी पे। मैनिफेस्टो में है ही नहीं है, मतलब उसके आसपास भी नहीं, शब्द का प्रयोग भी नहीं है जो आप ये कह रहे हैं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी आप कह सकते हैं बात। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री का एक और बयान आया, उन्होंने ये तक बोला है कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है कैंपेनिंग करने लगेंगे या वोट मांगने लगेंगे, उस दिन उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का जो है कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके के बयानों को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। ये तो आप उनसे पूछिए, ये तो देश की जनता इसका फैसला करे कि वो करते हैं नहीं करते। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। ये तो देखिए देश की जनता करे कि वो इस तरह की बात वो करते हैं कि नहीं करते। देश की जनता भी देख रही है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता भी तो कुछ सुन रही होगी। सर, एक और हमारे और आपके कहने से तो कुछ नहीं है। देश की जनता तो सभी के बयान देखती है, सभी के बयान समझती है। सर, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो हरियाणा के लिए रहा है वो रहा है रेस्टलर्स प्रोटेस्ट। आप क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रखर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कई वक्तव्य आए हैं, सपोर्ट भी किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब जो रवैया बीजेपी का रहा है, बृजभूषण शरण सिंह को भले ही टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से एक ओपनली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो दिखाई दिया है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, वो मैं समझता हूँ आज ये हमारे देश की संस्कृति है, किसी हर बहन बेटी की इज़्ज़त इस देश में सर्वमान्य है, और अपने दुश्मन की बेटी की इज़्ज़त भी अपनी स्वयं की इज़्ज़त मान के चलाई ऐसा देश है। और ऐसे में मैं समझता हूँ अब दिल्ली कोर्ट ने कह दिया कि उन 5 बेटियों को हर मौके पे जो है ये उनके साथ गलत करते थे, भाजपा के सांसद थे, तो आज देश के सामने बात आई है। अच्छी बात नहीं है कि फिर उसके बावजूद आज तो तथ्य आ गए सामने, कोर्ट ने चार्जशीट कर दी, लेकिन इनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करने से भी दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया था। 5 महीने तक इनको बैठना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी। तो ये मैं समझता हूँ कि देश की सरकार ने बड़ा भारी पक्षपात किया इस मामले में। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा की खास तौर पे बात की जाए, कहीं ना कहीं जो 2 गुट दिखाई देते हैं हरियाणा में, क्या अब चुनावों के मद्देनज़र वो एक साथ होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नॉमिनेशन के समय में ऐसा नहीं दिखाई दिया था। कोई गुट नहीं हरियाणा में, कांग्रेस एकजुट है। सर, जो एक एसआर के ग्रुप जो बोला गया था, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये भी आपकी जो है ना मीडिया वालों की बातें हैं। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस एकजुट है, एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। एकजुट है, एक साथ ही लड़ रहे हैं। और बताओ, एक साथ लड़ रहे हैं, 10 की 10 सीट जीत रहे हैं कांग्रेस की। ठीक है, thank you so much, sir. So that was Dipinder Singh Hooda speaking exclusively to Times Now, and he has mentioned that Congress party is going to win all the 10 seats in the state of Haryana. He is quite confident about it, and he is saying that the Congress party is united. For the Congress party to stage a revival, Haryana will be a critical part of the calculation. आपको क्या लगता है कि आपको भी जरूरत लग रही है एक परिवर्तन की रोहतक में? परिवर्तन होगा इस बार, परिवर्तन की लहर है, लोगों का मन भी है कांग्रेस की तरफ, और दीपेंद्र जी का जो स्वभाव है, और पहले वाले जो सांसद जी थे वो गांव में आए नहीं कभी 5 साल तक, तो उसके प्रति रोष है लोगों का। हाँ, सही है। क्या आपको वजह लग रही है कि एक युवा चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा, या फिर जो कहा जाता है कि एक ये हुड्डा परिवार का ही गढ़ माना जाता है रोहतक, इसलिए जो है थोड़ा समर्थन ज़्यादा देखने को मिल रहा है दीपेंद्र हुड्डा के लिए? दीपेंद्र बहुत सज्जन आदमी है, सबकी बात सुनता है, सबकी मदद भी करता, उससे होता है वो, और सबसे नंबर 1 का है भारत में भी है ना, संसद सबसे अच्छा स्वभाव का है, और सभी यार यही जीतेगा आपका फिलहाल। ठीक है।
आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर काफ़ी सालों से यहाँ पे पॉलिटिक्स होते हुए देखी होगी, नेता आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कुछ अलग जो है वो देखने को मिल रहा है? पिछली बार जैसे अरविंद शर्मा जीत कर आए थे, क्या उन्होंने काम किया है ज़मीनी स्तर पे? क्या आपको लगता है कि जो पिछली बार की जो चुना गया था अपने सांसद के रूप में रोहतक की जनता के द्वारा, क्या उन्होंने असल में काम किया है ज़मीनी स्तर पर? आई डोंट कमेंट ऑन वर्क, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा एक बहुत से सांसद हैं, मिलनसार हैं, और उसकी वजह से जनता उसको वोट देगी। दैट्स ऑल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे गांव में बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने की हमें अपने गांव की ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने की उम्मीद है। अपने सांसद से क्या आपकी कोई बात हुई है? हाथ पकड़ो दिल्ली में जी, मैंने स्कूल +2 कर दिए, दिल्ली में हाथ पकड़ लिया तो अच्छा, बोला हाथ छोड़ दे, मैं हाथ जब छोड़ स्कूल क्या मार लिया, बना दिया सारी वोट से धमाल। यहाँ कभी इस गांव में आए हैं? कौन सांसद साहब गांव में आए थे, पर इसका वो जो गांव ने जो पहले जितना कराया था ना सम्मान जी, उससे गांव में कुछ वो नहीं किया। 5 साल बाद ही एक बार ही आए थे, अब उसमें आपने उसके लिए आज हाँ दीपेंद्र जी का तो ऐसा है जी, सभी के लिए समान है, और कोई भी हाथ पकड़ के कह देता है जी एक काम है। और जो हमारा गांव में जो विकास हुआ है ना जी, नाली से लेकर उसका ट्रेल वगैरह जितना रास्ता हुआ था ना, सबसे ज़्यादा विकास डाडा गांव में दीपेंद्र के ही फंड से हुआ है। स्कूल से लेकर बाहर जितना अपग्रेड सब कुछ इन्हीं के टाइम में हुआ है। आज तक किसी ने कोई ऐसा गांव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। The BJP has an excellent record when it comes to direct fights with the Congress party in Lok Sabha polls. Will the Congress be able to spring a comeback this time? As of now, it seems like the Congress party is quite confident about Dipender Singh Hooda, and not just confident, but even the people of Rohtak constituency are very much unhappy with the incumbent MP from the BJP, Arvind Sharma, and they are saying that a change is very much needed, and that's the reason why even this confidence can be clearly seen in the campaigning of Dipender Singh Hooda. The posters and the banners which are being placed at various locations in the Rohtak constituency states दीपेंद्र की पहचान उसकी शराफत और उसका काम. So that's what is being said by the Congress party, being claimed by the Congress party, and Dipender Singh Hooda is also saying that the manner in which a political turmoil has come in the government of Haryana, it is also going to surely make an impact in the Lok Sabha elections as well, and the Congress party is going to win all of the 10 seats.